خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈینگی مچھر کی۔ ڈینگی مچھر کے وار بڑھنے لگے ہیں۔ میو ہاسپٹل میں ڈینگی کی مریضہ جان کی بازی ہار گئی۔ 19 سالہ مہوش بی بی ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کی رہائشی تھی۔ مریضہ کو حالت بگڑنے پر شیخ پورہ سے لاہور شفٹ کیا گیا۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں، بتائیے بلال۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی سے اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور میو ہاسپٹل میں ڈینگی کی مریضہ جان کی بازی ہار گئی ہے۔ 19 سالہ مہوش بی بی جو کہ ڈسٹرکٹ شیخ پورہ کی رہائشی تھی اور مریضہ شدید بیمار تھی۔ مریضہ کو شدید طبیعت خراب ہونے پر 27 تاریخ کو میو ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، جبکہ 29 تاریخ کو اس کی موت واقع ہو گئی۔ مریضہ کی جو ابھی میو ہاسپٹل میں اور جو ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ہے، ان کی جانب سے مریضہ کا مکمل 2-3 دن میں ان کی تشخیص کی گئی کہ مریضہ کی موت کیسے واقع ہوئی، جس کے بعد ابھی جو رپورٹ پیش کی گئی ہے جو کہ لاہور نیوز کے کو موصول ہوئی ہے، اس کے مطابق مریضہ کا جو ڈینگی کا ٹیسٹ تھا IgM یہ بھی مثبت آیا تھا اور مریضہ کو ڈینگی شوک سنڈروم تشخیص ہوا تھا۔ مریضہ کریٹیکل حالت میں شیخ پورہ سے لاہور شفٹ ہوئی تھی۔ اس حوالے سے جو ڈیاگ ہے ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ، ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ حالیہ کچھ دن ڈینگی کے لیے بہت اہم ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہے، ڈینگی کے جو SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں اور خاص کر صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں جو ہے یہ گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ جب بھی نکلے تو پورے جو ملبوسات ہے یہ ڈھانپ کر نکلیں تاکہ جو نیکڈ ایریا ہے وہ نظر نہ آئے جس پہ جو مچھر ہے یہ کاٹ سکے۔ اس وقت بھی لاہور کے اندر کافی زیادہ پیشنٹ ڈینگی کے رپورٹ ہو رہے ہیں اور کریٹیکل پیشنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو صوبائی وزیر صحت ہے خواجہ عمران عزیز، ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ڈینگی سرویلنس ہے اس کو مزید تیز کر دیا گیا ہے، لیکن اب شہریوں بھی ہے کہ وہ کس طرح احتیاطی تدابیر اپنا کر اس خطرناک بلال، آپ بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر کی جانب سے کہا گیا کہ سرویلنس تیز کی جا رہی ہے۔ شیخ پورہ کوئی دور افتادہ علاقہ نہیں ہے جہاں سہولیات میسر نہ ہوں۔ ایسا کیا ہوا کہ مریض کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں لاہور لانا پڑا، اور لاہور میں کیوں انہیں طبی امداد پراپر نہیں دی گئی؟ دیکھیں، اس وقت جو سچویشن ہے کہ لاہور میں اور دیگر جو اضلاع ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور مریضہ کو لاہور جب لایا گیا تھا تو اس وقت وہ کریٹیکل کنڈیشن میں تھی۔ اس سے پہلے ان کا جو CBC ٹیسٹ تھا یہ بھی ہو چکا تھا جس میں ان کے پلیٹلیٹس بھی بڑی خطرناک حد تک کم تھے اور مریضہ کی جو تھی یہ لیکیج فیس میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد ان کا جو IgM ٹیسٹ ہے جو کنفرم کرتا ہے 100% کہ مریضہ کو ڈینگی ہے یا نہیں ہے، تو بھی مریضہ کا کنفرم پایا گیا۔ تو اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں میو ہاسپٹل کے ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ مریضہ کو مکمل طور پر طبی سہولیات فراہم کی گئی تھی، ڈرپس بھی لگائی گئی تھی، بہترین جو میڈیکل سہولیات وہ دی گئی تھی، لیکن مریضہ جان پر نہ ہو سکی۔ لیکیج فیس ہونے کی وجہ سے، پلیٹلیٹ سیل کم ہونے کی وجہ سے مریضہ کی جان کی بازی ہار گئی۔ تو جہاں تک صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران عزیز کا تعلق ہے، ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، چونکہ اب مچھروں کی یہ سیزن ہے اور یہ ان کا اس وقت فیوریٹ ایریا ہے۔ تو اگر اس موسم کے اندر احتیاط نہیں برتی جائے گی تو خطرناک حد تک جو نتائج ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ دن کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں جو ہے یہ پورے ملبوسات والے کپڑے پہنے تاکہ اس خطرناک موسم میں ڈینگی سے بچا جا سکے۔ جی، آپ کا بہت شکریہ بلال۔ اسموک کی شدت میں کمی، لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ، DHA فیز 8 سب سے زیادہ متاثر، AQI 221، شملہ پہاڑی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 196 ریکارڈ کیا گیا۔ سامع سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامع۔ بالکل، فضائی آلودگی میں آج اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور پہلے نمبر پر ہوتا ہے تو کبھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جاتا ہے، مگر تاحال اگر میں صورتحال کی بات کروں تو آلودگی کی شرح میں جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر میں اسموک کی مجموعی اوسط شرح جو ہے وہ 172 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تاحال سب سے زیادہ جو متاثر علاقہ ہے وہ DHA کا ہے، 221 ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس۔ اس کے علاوہ اگر شملہ پہاڑی کی بات کی جائے تو 196 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ میں کینٹ کی بات کروں تو وہاں بھی جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 180 سے تجاوز کر رہا ہے، مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 200 سے تجاوز کرتا ہے تو وہ تمام تر شہریوں کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث ہے۔ مگر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں صبح کے اوقات میں تو دیکھا جا رہا تھا اتار چڑھاؤ، لیکن ابھی جو مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 172 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تاہم شہریوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسموک سے بچنے کے لیے تمام طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اب موسمیاتی تبدیلیاں جس طرح سے رونما ہو رہی ہیں اس کے لیے شہری خاص طور پر گرم ملبوسات کا استعمال کریں۔ جی سامعہ، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صحیح فضا پرووائڈ کی جائے، جبکہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا جا رہا ہے۔ بتائیے کہ ضلعی انتظامیہ اقدامات کیا کر رہی ہے؟
जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया जो है वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो इकदाम कर रही है। तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। शहर की आम शाहराहों पर जो है वो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। इसके बाद अलावा जो है वो तमाम तर फैक्ट्री जो है SOPs पर अमल नहीं कर रही, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और तमाम तर जो है वो शहरियों को भी कहा जा रहा है कि वो तमाम तर अनासिर जो आलूदगी फैलाने में इजाफा करते हैं तो महकमा माहौलियात को जो है वो इसके हवाले से रिपोर्ट किया जाए, ताकि अपने इर्द गिर्द जो है वो आलूदगी की शरह को कम किया जा सके। ताहम पंजाब हुकूमत की जानिब से तो कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर पंजाब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो तमाम तर चीज़ें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा कर रही हैं, उन सब से जो है वो गुरेज करें। जी सामा, ये भी बताइए कि डॉक्टर्स की जानिब से क्या एहतियाती तदबीर अपनाने का कहा गया है शहरियों को? जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है शहरियों को कि तमाम तर जो गर्म चीज़ें हैं वो खाएं, जिसमें है कहवा हो गया, खुश्क मेवा जात हो गए, और इसके अलावा दूध के अंदर हल्दी डाल के पिए, ताकि जो है वो फिजाई आलूदगी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, जिसमें गला खराब, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां अभी शहर लाहौर में आम ही देखी जाती हैं, तो डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें, लाजमी अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया सामिया। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के हवाले से निजी इदारे की सर्वे रिपोर्ट शाये। सर्वे में शहर भर में रहायश पजीर 1500 नौजवान लड़कों और लड़कियों की राय ली गई। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक का फैलाव 3 चीज़ों, हुकूमती और अवामी इकदाम और हवा के रुख पर मुनहसर। 63% लाहौरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के माहौल दोस्त और मौसर इकदाम को सराहा। 69% अवाम स्मोक के खिलाफ हुकूमती इकदाम बारे आगाही रखते हैं। 90% नौजवान स्मोक से होने वाली बीमारियों से वाकिफ़ हैं। 88% शहरियों ने सनतों की रहायशी इलाकों से मुंतकली के इकदाम को सपोर्ट किया। 44% नौजवानों का मानना है कि गाड़ियों का धुआं स्मोक की बड़ी वजह है। 40% नौजवानों ने आज तक अपनी गाड़ी, मोटर बाइक का सिलेंसर ठीक या चेक ही नहीं करवाया। सर्वे रिपोर्ट में हवा का रुख फ़ज़ाई आलूदी के फैलाव का अहम सबब करार दिया गया। अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी डेडलॉक ख़त्म करने के लिए मुतबादिल प्लान को पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले का नाम दिया जाने का इम्कान। नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे, जबकि अगले 3 साल भारत में मुनक्किद होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मामला डेडलॉक खत्म करने के लिए मुतबादल प्लान को बराबरी की बुनियाद पर पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला का नाम दिए जाने का इम्कान। नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे, जबकि अगले 3 साल तक भारत में होने वाले तमाम ICC इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। दूसरी जानिब ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ICC के नए चेयरमैन बन गए। जय शाह ICC के चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारियां भी संभाल चुके, जबकि जय शाह ICC के 3 साल तक सदर रहेंगे। ICC बोर्ड मीटिंग में नए फार्मूले पर पेशरफ्त का इम्कान है। नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत टाकरा दुबई में कराने की तजवीज है। PCB ने नया फार्मूला ICC के साथ शेयर कर दिया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक की वजह से शेड्यूल का अभी तक ऐलान नहीं हो सका। मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज। अब कुछ बात करते हैं महंगाई की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। 3 रुपये 72 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल भी 3 रुपये 29 पैसे महंगा, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर। शहरी हुकूमत के इस फैसले से नाला है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल 248 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 29 पैसे महंगा, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 48 पैसे कमी की गई। शहरी हुकूमत के फैसले से नाला। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से दूसरी अशिया की कीमत में भी इजाफा होता है। हमें तवक्को थी कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करेगी। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हम वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि सर्वाइव करना। हमने काम पे जाना होता है डेली, तो हमें बहुत मुश्किल होती है। मैं हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि गरीबों का खून ना चूसें। इतनी महंगाई है और आपको पता है सर्वाइवल के लिए डबल स्ट्रगल है, तो स्पेशली जो सैलरीड पर्सनस हैं उनके लिए, तो काइंडली इस बारे में सोचें, कुछ ऐसी इस्लाहात लाएं, ऐसे स्टेप्स लें कि जो आवाम के लिए बेहतर हो। शहरियों का कहना है कि आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम का ख्याल करते हुए पेट्रोल की कीमत में कमी करे। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। LPG की कीमत में मामूली इजाफा। घरेलू सिलेंडर 1 रुपया 32 पैसे महंगा, नई कीमत 3000 रुपये मुकर्रर। शहरियों का कहना है कि सर्दियों में गैस आती नहीं और LPG महंगी कर दी गई। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। तफसीलात जानते हैं जैन अली से। जैन, बताइए।
जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के साथ साथ अब LPG की कीमत में भी मामूली इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर जिसकी कीमत में ₹1.32 का इजाफा किया है, जिसके बाद 11.8 किलोग्राम का जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत ₹3000 तक जो है मुकर्रर की कर दी गई है। ओगरा ने इस LPG की कीमत में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में भी बढ़ाई, जबकि उसके साथ अब LPG की कीमत में भी जो है वो इजाफा कर दिया। शहरियों से बात करते हैं, सर पहले पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई, अब सिलेंडर LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? अजय महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब बंदा ना वो पिस रहा है वो, ठीक है। पहले पेट्रोल महंगा था, अब LPG महंगी है, तो क्या करें, घरेलू घर में तो गैस आ रही रही, तो हम अब आम जो दुकानों पर भराने के लिए मजबूर है, तो क्या करें हम। ये हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को, लेकिन हुकूमत रिलीफ दे नहीं रही। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो हुकूमत से रिलीफ की तवक्को लगा कर बैठे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो कीमतों में जो है इजाफा देखने में आ रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, जबकि उसके साथ साथ अब LPG की कीमत में भी जो है वो ₹1.32 का इजाफा किया गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की जो कीमत है वो ₹3000 तक मुकर्रर कर दी गई है। आपका शुक्रिया जैन। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही लंडा बाजार की रौनकें बढ़ गईं। महंगाई के जिन ने लंडा बाजार में भी पंजे गाड़ लिए। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए आए शहरी महंगाई से परेशान, कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से, जो इस वक्त हाजी कैंप में मौजूद हैं। हमजा बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लंडा बाज़ार में, रेलवे स्टेशन के करीब, और आज छुट्टी का रोज़ है, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाज़ार तो पहुंची हुई है। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर भी, जिसको अवामी बाज़ार कहा जाता था, महंगाई का जिन यहाँ पर भी बेकाबू नज़र आता है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि लंडा बाज़ार में और ओवरऑल महंगाई की क्या सूरत हाल है? सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी तो सबसे यही हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि जो भी ये लंडे बाज़ार में आ रहे हैं, इनके सब के रेट बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन आवाम के पास इतनी बचत और पैसा नहीं है जो इधर वो खर्च करें। कोई गरीब आ रहा है, कोई अमीर आ रहा है, अमीर तो लेके अपनी ख्वाहिश पूरी करके जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो महंगाई की चक्की में इस तरह पिस रहा है कि उसको खाने के लिए नहीं बच रहा, वो पहनने के लिए क्या पहनेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर जो शहरी जो है वो बड़ी तादाद में पहुंचे रहे। इन शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल जो चीज़ 200 रुपये में मिला करती थी, आज जो है वो 800 से 1000 रुपये के करीब दस्तयाब है। और जो चीज़ें पिछले साल 4 से 5000 की मिला करती थी, उनकी इस वक्त जो डिमांड है वो 10-10 हज़ार रुपये की जा रही है। जबकि शहरियों का ये कहना है कि मलबूसात जो है वो जिस्म की ज़रूरत है, अपने आप को ढकने के लिए ज़रूरत है। अगर आम शहरी वो भी नहीं ले सकता तो फिर रोटी जो है वो बड़ी दूर की बात है। आपका शुक्रिया हमजा। सब्ज मसाला जात और पोल्ट्री मसनूआत महंगाई की लपेट में है। प्याज एक ही रोज़ में 18 रुपए फी किलो महंगा। ब्रायलर गोश्त और फार्मी अंडे भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। महंगाई की दुहाई में कमी ना आई। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और पोल्ट्री मसनूआत पहुंच से दूर। प्याज एक ही रोज में 18 रुपए महंगा। फी किलो सरकारी दाम 145 रुपए मुकर्रर। मार्केट में प्याज 170 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। टमाटर 140 रुपए की बजाय 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे। लहसुन का सरकारी निर्ख 675 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में लहसुन 800 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक चाइना और अदरक थाई निर्ख 410 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में अदरक 500 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। मार्केट में आलू 95 रुपए की बजाय 110 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। बंद गोभी 70 और फूल गोभी 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। पालक और साग 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त 14 रुपए महंगा। फी किलो सरकारी निक 475 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 350 रुपए फी दर्जन है। आवाम कहते हैं महंगाई के सामने बेबस है। आमदन के मुकाबले में खर्चात बहुत बढ़ गए हैं। आलू, प्याज, टमाटर, ये अभी नया जो आलू आया कम से कम 250 के 300, 150, 200 के करीब है। प्याज भी 150, 200 के करीब है। क्या करे, जिसके 5, 4, 6 बच्चे हों वो क्या करेगा। प्राइवेट कारोबार वैसे भी नहीं है, ठीक है। 1000-1500 रुपये लेके आते हैं हम घर से, तो 1000-1500 इतनी सब्जी पूरी भी नहीं आती। मार्केट ज़राए के मुताबिक प्याज दूर दराज इलाकों से आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी है, जबकि टमाटर की मकामी फसल में भी ताखीर है।